Zoom, my beautiful souls, welcome to this special live of the Nisa Show. Today, I am absolutely excited to explore something that affects every single person watching the silent battle happening inside your own mind. क्योंकि हमारे अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है. So, type live if you are here with us right now, or type replay if you are watching this amazing conversation later. और अगर हम पहले नहीं मिले हैं, इफ वी हैवेंट मेट येट, आई एम निसा, कमरुल निसा, इंडियाज फर्स्ट हिकमत कोच एंड द फाउंडर ऑफ द हिकमत एकेडमी. I help corporate professionals transform into the Hikmat leaders, and I am on a mission to direct 1 lakh professionals, 1 lakh corporate professionals, achieve inner wisdom, heal emotional wounds, and rise as confident, harmonious leaders in both their personal and professional lives. And today I am absolutely excited. This is, I think, beyond excitement, my excitement, ki we are going to explore something profound, the silent battle happening inside your own mind, inside our own mind. We are diving into वन माइंड मैनी वॉइसेस, क्योंकि हमेशा वो चैटर जो है चलता ही रहता है, वो साइलेंट बैटल हमारे अंदर चलती रहती है. एंड टुडे वी हैव एन अमेजिंग गेस्ट, हनीफा जी. She helps people master their inner voice, breaking limiting beliefs, and rise with confidence, clarity, and calm. चाहे आप नेगेटिव सेल्फ टॉक से परेशान हो, क्रिटिकल इनर वॉइस से स्ट्रगल कर रहे हो कि अब क्या करूं, क्या नहीं करूं, ये समझ नहीं आ रहा है कि किस थॉट को कैसे लेना चाहिए, कौन सा थॉट मेरे लिए पावरफुल है या नहीं है. Today's conversation is going to give you awareness, tools, and the power टू चूज वाइजली. कौन सी Hello. वॉइस को आपको सुनना चाहिए, कौन सी वॉइस को आपको केटर करना चाहिए. सो वेलकम वेलकम हनीफा जी. सो कुड यू प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू आवर ब्यूटिफुल सोल्स, टू आवर ऑडियंस जो हमें अभी देख रहे हैं. हनीफा जी, आर यू देयर? आई थिंक सम टेक्निकल ग्लिचेस देयर. हनीफा जी, आर यू लिसनिंग मी? कुछ टेक्निकल ग्लिच है अभी. हनीफा जी आ रही है तो मैं आपको कह रही थी कि Sure. अच्छा. Mhm. ओके हनीफा जी, ओवर टू यू कि आप अपने आप को फर्स्टली इंट्रोड्यूस करिए हमारी ऑडियंस को जो हमें अभी देख रहे हैं. Hello. Hi, Kamarun Nissa. Har bar, every time I just, get so excited and happy to know about your mission and the brand Hikmat Queen. All the very best. This is mind blowing. You are doing थैंक्स. wonderfully good. So, अब आते हैं मुझ पे. मैं हूँ प्रोफेसर टर्न लाइफ कोच, NLP expert, mind master, you can say psychotherapist, and author of Radiance Resilience, and helping working professionals to get their self esteem and releasing old trauma through healing. That's it. Amazing, zabardast. So for those who just joined us today, we are exploring one mind many voices with हनीफा जी. कि हम अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं कि साइकोलॉजिकल जो वॉइसेस हैं जो हमारे माइंड में, हमारे हेड में चलती रहती है, कि व्हाई दिस नेगेटिव सेल्फ टॉक फील सो पावरफुल. हम भाग रहे हैं, लेकिन कि हाउ टू डील विद देम दीज वॉइसेस. So if you have any question about inner voices, limiting beliefs, or mastering how to master your mind, drop your question in the chat box, and we will definitely take your question, and Hanifa ji will definitely answer it. So Hanifa ji, most people don't even realize कि they have multiple voices running in their heads constantly, Mhm. जो चलता रहता है. So tell me one thing, what are the psychological voices, and how are they different from our true inner wisdom, true inner voice या wisdom? जी जी कमल, थैंक यू सो मच. लेकिन मैं अपने ऑडियंस को बहुत सलाम दुआ पेश करके ये बताना चाहती हूँ कि इससे पहले कि हम टॉपिक पे बढ़े,
मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करती हूँ, आप थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा पॉज ले और देखें आपके अंदर क्या आवाज आ रही है। बेशक आ रही होगी। क्या ये आवाज आ रही है ध्यान से सुनते हैं? क्या ये आवाज आ रही है देखते हैं क्या मिलेगा? या ये आवाज आ रही है इंटरेस्टिंग लग रहा है? या कुछ और भी हो सकता है। तो देखिए, मैंने अभी बात शुरू नहीं की, टॉपिक शुरू नहीं किया, लेकिन आपके माइंड में वॉइसेस शुरू कर दी। एग्जैक्टली इसी वॉइस पे हम आज बात करने वाले हैं। मैं यहाँ सिर्फ एक स्पीकर या होस्ट बन के नहीं, एक ऐसी मतलब आप कहें कोच, एक ऐसा पर्सन यहाँ पे हूँ जिसने बहुत ही स्ट्रॉन्ग, इंटेलिजेंट, कैपेबल लोगों के साथ काम करके ये देखा है कि उनकी लाइफ के स्ट्रगल्स जो हैं, सिर्फ बाहरी दुनिया से नहीं, बाहरी ऑब्स्टिकल से नहीं, बल्कि उनके अंदर जो वॉइसेस चल रही हैं उनकी वजह से उनकी स्ट्रगल्स है। तो आपको ध्यान दिलाने के लिए मैं बताऊंगी, जब हम सुबह उठते हैं तो इनर वॉइसेस शुरू हो जाती हैं। क्या होता है? कमेंट करने शुरू हो जाते हैं हमारे अंदर, कंपेयर करना शुरू करते हैं, जज करना शुरू करते हैं, या हमें कभी कभी मोटिवेट करते हैं, या कभी कभी चुपके चुपके से हमारी कॉन्फिडेंस और पीस को छीन लेते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट टेक अवे क्या है इसमें से? ये है कि जब ये आवाज हम सुनते हैं, हम महसूस करते हैं, हमें लगता है ये हम ही हैं। तो नो ऑडियंस, ये हम नहीं है, इसके पीछे कई सारे लेयर्स हैं जिसकी वजह से ये आवाजें आ रही हैं। तो आइए, यहाँ पे ये, मैं आपको ये फिक्स करने के लिए नहीं, ना कोई फोर्सफुल एक्शन लेने के लिए मैं यहाँ बैठी हूँ, नहीं, ये सिंपली आपको ये एक छोटी सी चीज देने के लिए आई हूँ, अवेयरनेस, ताकि हम माइंडफुल रहें, थॉटफुल रहें कि क्या हो रहा है, क्या ये मैं हूं या कोई और, क्योंकि हम इन आवाजों को अपनी आइडेंटिटी मान के चलते हैं, राइट? तो अब अब हम आते हैं कमर जी का क्वेश्चन कि ये वॉइसेस हैं क्या। बेसिकली क्या होता है, हम अकेले नहीं हैं। हमारे माइंड में तीन तरह की वॉइसेस चल रही होती हैं लगातार। एक है वो ड्रीमर, जो बोलता है मुझे कुछ करना है, मैं कुछ करना चाहता हूँ, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो कोई जॉब हो, चाहे किसी को लगता है मैं ओलंपिक चैंपियन बनूं, मैं ऑथर बनूं, कुछ भी, छोटा या बड़ा, या मैं पिकनिक पे जाऊं, इसमें छोटा भी हो सकता है बड़ा भी, लेकिन ख्याल आता है इस ड्रीमर को कि मैं कुछ करूं। फिर इसके अंदर क्रिटिक जागता है, एक और वॉइस है, क्रिटिकल वॉइस। वो बोलती है, फॉर एग्जाम्पल मैं लेती हूँ यहाँ पे, मेरा ड्रीमर कहता है अभी बारिश हो रही है या स्नोफॉल अभी हो जाएगा, तो कितने एक्साइटेड होते हैं हम। तो अभी मेरा ड्रीमर कहता है चलना बाहर, बर्फ का वो बनाऊंगी मैं, शिन मोहिनी आते से बना, ठीक है। ड्रीमर कहता है, अब ये वहां से मुझे क्रिटिक बोलते क्या जाओगी, लोग क्या कहेंगे, ठंड लगेगी, शू हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगी। क्रिटिकल वॉइस मेरी, ये किसी ने मुझे रोका नहीं, लेकिन मेरे अंदर जो है ना ये क्रिटिकल वॉइस, ये मुझे बता रही है क्या जाओगी, जुकाम हो जाएगा, बीमार पड़ जाओगी, ठीक है। के बाद ये जो एक्शन टेकर, हमेशा हमारे अंदर एक एक्शन टेकर तो होता ही है, उसको कुछ ना कुछ करते रहना है। अगर उसको सही डायरेक्शन नहीं मिलेगी, वो कुछ और ढूंढ लेगा, कुछ ना कुछ करेगा। तो ये तीन आवाजें जो है ना, हम क्या मानते हैं कि क्रिटिकल वॉइस जो है ये हम ही हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि ये हमारे अंदर से आते हैं, हमें लगता है ये हम ही हैं, लेकिन ये हम नहीं होते हैं। इसके पीछे आगे देखी जाने की कोशिश नहीं, ये एक्चुअली है क्या। तो ये है कमर, तीन वॉइसेस, ड्रीमर, जी, क्रिटिक एंड द एक्शन टेकर, जो can take हमारे her, अंदर yes. है। ड्रीमर ड्रीम True. करता है मुझे बारिश में जाना है, क्रिटिक बोलता है भीग जाओगे, बीमार पड़ जाओगे, एक्शन टेकर जो है बोलता है चलो फिर नहीं जाता हूँ, ठीक है। अगर अब उसको जाना ही, क्या करना पड़ेगा वो आगे देखेंगे। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कि हाँ, कि सही से क्लैरिफाई किया आपने कि क्या क्या है ड्रीमर, क्रिटिक एंड एक्शन टेकर, जो कि मैं भी अक्सर इन तीन की बात करती हूँ, कि मैं भी बोलती हूँ कि हर एक इंसान के अंदर तीन इंसान रहते हैं।
तो थैंक यू सो मच कि आपने भी क्लैरिफाई कर दिया कि हाँ, ये तीन इंसान हैं जो हमारे अंदर रहते हैं, हर वक्त हम वो जी रहे होते हैं, हम तीन इंसान। एंड यू आर हेल्पिंग आवर ऑडियंसेस के अंडरस्टैंड दैट नॉट एवरी थॉट दे हैव इज देयर ट्रुथ, सम आर जस्ट कंडीशनड भी हो सकती है वॉइसेस। एंड साइमुल ने मैसेज डाला है चैट बॉक्स में कि उसकी इनर वॉइस ये कह रही है कि वी टू we too, they admire, she admires us. Yeah, Thank you so wonderful. much, Saima. Thank you, Saima. Yes, we too are going to, blast, rock. Thank you, Thank you thank so you. much. Yeah, थैंक यू शमुलिमा जी, आप हमें देख रही हैं, थैंक यू सो मच शमुलिमा जी। शमुलिमा जी भी हमें देख रही हैं, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग अस। एंड टुडे आवर टॉपिक इज इनर वॉइसेस, की क्या चैटर चल रहा है माइंड में। तो यहाँ मुझे, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से जो आपने क्लैरिफिकेशन की यहाँ इन इंसान के अंदर तीन इंसानों की, तो मुझे यहाँ पे मुझे क्योंकि आपको पता है कि पोइट्री से जो है ज्यादा लगाव है, तो मुझे जब भी आपका बारे में सोचती हूँ तो मैं खुद ब खुद वो पोइट्रीज मुझे कहीं ना कहीं आती है कि कुछ मैं बोलूं आज। तो अभी भी मुझे वो एक गालिब का शेर याद आ रहा है कि इस टॉपिक के रिलेटेड, आपके रिलेटेड स्पेशली, कि हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, oh, हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं हनीफा जी का है अंदाज़े बयां। thank you so much. और This is nothing but your love and affection. I am थैंक यू honored सो always. थैंक यू सो मच। Thank you, Kamal. क्योंकि जब भी मैं आपकी कोई रील, आपका कोई टॉपिक सुनती हूँ, कि आपका सच में योर अंदाज़े बयां इज समथिंग Thank you, डिफरेंट, समथिंग मार्वलस। थैंक यू सो मच। thank you. दूसरे स्टेप की जी, तरफ जाते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि दिस फ्रस्ट्रेट्स सो मेनी पीपल, दे नो लॉजिकली कि दैट द क्रिटिकल वॉइस इज रॉन्ग। बहुतों को पता होता, हमें भी पता होगा कि ये गलत है, अरे ये कहाँ है, बट इट स्टिल कंट्रोल्स देम इमोशनली। जैसे कि अभी आपने एग्जांपल दी कि आपका अंदर का बोल रहा था जाके मैं बर्फ में खेलूं, कुछ बर्फ होगी तो मैं वो जो भी हम डिफरेंट डिफरेंट बनाते हैं, इंसान बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं, लेकिन आपके क्रिटिक ने बोला अरे लोग क्या कहेंगे, ठंड लग जाएगी, गला खराब होगा, वगैरह वगैरह। सो जी, व्हाई डू नेगेटिव और क्रिटिकल वॉइसेस फील सो रियल एंड पावरफुल, क्योंकि अक्सर वो बिल्कुल रियल लगती हैं, इवन व्हेन वी लॉजिकली नो कि दे आर नॉट ट्रू। हाउ जी. व्हाई दे इफेक्ट्स अस सो मच। Yes, Kamal. Coming to this point. ऐसा होता है कि ये जो हमारा सबकॉन्शियस लाइफ जन्म से लेके अभी तक, बल्कि जेनेटिक भी बहुत सारा लेके बैठे हैं, उस डेटा के अकॉर्डिंग हम ये जागरूक करता है, वार्न करता है, कभी डराता है, या कभी मोटिवेट करता है, कभी रोकता है, कभी फेयर जगाता है। क्यों? क्योंकि अंदर से कुछ इमोशनल वुंड्स होते, चाइल्डहुड कंडीशनिंग होती है। कोई बच्चा है, उसको क्लास में नोटबुक भूल जाती है, एक बार भूल गई तो बोलता है क्यों भूल गई, दूसरी बार बोलता है तो टीचर उसको भुलाक्कड़ बोलता है। घर आ जाता है तो वहां से जो अक्सर बच्चे करते हैं, लंच बॉक्स छोड़ के आ जाते हैं, कभी पेंसिल छोड़ के आ जाते हैं। तो मम्मी भी एक बार, दो बार, तीन बार तंग होके फिर बोलती है तुम तो बिल्कुल इडियट हो। ऐसा हम मजाक में बोलते हैं, लेकिन उसकी वो पहचान बन जाती है। उसका सबकॉन्शियस माइंड में, चूंकि ये फायर बार बार करते हैं, तुम तो ब्लैकड हो, तुम तो इडियट हो, उसको रह जाता है अंदर, वो मेमोरी में जाता है। एंड ये रियल फील क्यों होता है? रियल इसलिए फील होता है कि इसके साथ इमोशंस जुड़ी होती है। ये बच्चा याद रखता, अरे कैसे मुझे टीचर ने बोला ब्लैकड हो, या उसने बोला इडियट हो, कैसे सबके सामने, क्योंकि इसका दिल दुखता है, क्योंकि हमारा माइंड एंड हार्ट आर कनेक्टेड। ओके, हमारा ये जो माइंड है उसमें दो सेगमेंट्स हैं, एक तो इमोशनल ब्रेन है, और है दूसरा है थिंक ब्रेन। ये जो इमोशनल ब्रेन है उसको ज्यादा लेता है हमारा माइंड, उसको ज्यादा मानता है, क्योंकि वो बार बार हमारी माइंड में, आप देखा क्या हुआ, देखा उसने क्या बोला, देखी देखा मेरी हालत क्या हो गई। तो ये बार बार फायर करके वो वायर करता है सबकॉन्शियस माइंड उसको, और वो उसी को फेमिलियर, उसको अपना यार लगता है, क्योंकि रोज उसके माइंड में वही चलता है। तो फेमिलियरिटी ज्यादा मान
इसको आपकी आवाज नहीं आ रही है। आई थिंक सम टेक्निकल ग्लिच है, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है। निफा जी, आपका कैमरा स्टक हो गया है। तो हम बात कर रहे थे कि क्यों ये जो चीज हमें, क्रिटिकल चीज जो है, ये हमें क्यों फेयर लगता है, क्यों हमें वो चीज रियल लगती है जब हमें कोई जब हम कुछ वैसा, जैसे कि हनीफा जी ने बोला कि जैसे उस बच्चे की उन्होंने एग्जांपल दी कि स्कूल में उसको इडियट बोला गया, एंड देन पीछे तो घर में भी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं वही वही उसी के आर वी बारे में लाइव, आर अब वी ठीक है, लाइव। मैं वही। यस यस यस, वी आर लाइव। ओके मैं ओके, वही आई थॉट। मैं वो कंटिन्यू कर रही थी कि आप वो बच्चे की एग्जांपल बोल रहे थे। यू कैन गो अहेड, यू कैन गो यस। अहेड। सो ये इसीलिए रियल लगता है कि ये इमोशनली चार्ज होता है, और बार बार ये जो ओवर थिंकिंग है ना, जो कोई हर्ट, गिल्ट या कंडीशनिंग होती है ना, या कोई फेलियर होता है, हमारे माइंड में वो लगातार चलता रहता है, और हम उसको सही मानते हैं, अपना यार मानते हैं उसको। हम्म। ठीक है। बिल्कुल तो इस तरह बिल्कुल से ये मान तरह से हमें वो, दैट मेक्स so much sense. Thank you so much. And you are showing कि why logic alone can't silence these voices. They operate on a deeper psychological level, क्योंकि वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ चुकी होती है वो बात, वो वहां से उसको गाइड, मतलब उसको वो जो करेक्ट। सिग्नल्स आ रहे होते हैं वहां से आ रहे होते हैं। थैंक यू सो मच हनीफा जी। So, our audience, our beautiful souls, might be making major life decisions based on these voices without even knowing it. उनको समझ ही, पता ही नहीं होगा कि ये कहाँ से हो रहा है. So, राइट। how do psychological voices silently influence our confidence? क्योंकि हम डगमगा जाते हैं। हमारे कॉन्फिडेंस को कैसे वो इन्फ्लुएंस करते हैं, या हमारे डिसीजंस मेकिंग को, या कभी 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 तो हमारे रिलेशनशिप्स को वो कैसे इफेक्ट कर सकते हैं, विदाउट जी। इवन कि हमें रियलाइज भी नहीं होता है, विदाउट कि हम गलत कर रहे हैं, कि ये मैं नहीं हूँ, ये कोई कोई और मुझसे करा रहा है। सो इसके बारे में आप कुछ रिवील करेंगी हमारी ऑडियंस को? यस, श्योर कमल जी, व्हाई नॉट। यहाँ तो इसीलिए बैठे हैं। राइट। तो इससे पहले हम देखेंगे हाउ इट अफेक्ट्स हम्म। डिफरेंट सिनेरियोज, हमारा डिसीजन को कैसे ये करते हैं, हमारे रिलेशनशिप्स, हेल्थ को, जो भी हमारा है। इट कैन बी स्पिरिचुअल, इट कैन बी फिजियोलॉजिकल, इट कैन बी एनी काइंड ऑफ थिंग। ये क्रिटिक जो है, जब कोई मतलब कोई 2-3 बार उसको वायरल इन्फेक्शन होता है, तो वो समझने लगता है मुझे तो वायरल इन्फेक्शन होता है ना, मैं तो हूं ही ऐसा कमजोर, वीक हूं मैं। तो वो उसको एक्सेप्ट करता है, ये क्रिटिक ही उसको एक्सेप्ट, क्योंकि पता है क्या है कमर, ये ऐसा है कि हम कहाँ से आए हैं, केव से। तो हमारा माइंड प्रोग्राम है बाय डिफॉल्ट फॉर सर्वाइवल, जिंदा रहने के हम्म। लिए। तो ये जब से हम आए हैं ना, तब से हमारा, तब जिंदा रहने के भी डर डर होता था। कभी शेर, कभी सांप, कभी गरज, कभी सन जो है ज्यादा हीट देने लगा, तो वो लोग उसी को पूजने लगे, क्योंकि उनको लगता था ना यही है जो सब कुछ कर रहा है। ठीक है। हम्म। तो तब लगता था जान बची तो लाखों पाए। तो ये हमारा माइंड, इट इज सेट बाय डिफॉल्ट फॉर जस्ट सर्वाइवल, नॉट फॉर सक्सेस। और अगर हमें बचने से आगे कुछ करना है, तो वी हैव टू डू डिफरेंटली। अब सवाल ये है, ये जो क्रिटिकल वॉइस मैंने कहा, ऑडियंस को लगा होगा ये तो कोई भयानक सी चीज है हमारे अंदर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जैसे हम क्रिटिकल एनालिसिस किसी भी चीज का करते हैं, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वहां हमारे अल्लाह मियाँ ने, जैसे ये आपने सुना होगा, मैंने भी बचपन से सुना है कि मशवरा करना चाहिए। जो भी आपके अराउंड है, कोई नहीं तो दीवार के साथ करना चाहिए, कोई नहीं तो आपको अपनी वो जो है ना टोपी या दस्तार जो वो रखते थे, जो भी पगड़ी, उसके साथ करना है। वो क्या है, वो यही है कि अंदर ही आप, मैंने रखा है आपको फुल पैकेज, मैंने आपको फुल पैकेज रखा है। तो ये क्रिटिक ऑन इट्स प्रीवियस डाटा, जो आपके साथ हुआ है, जो आप करने वाले, उसके अकॉर्डिंग वो आपको वार्न कर रहा है। आपको नहीं बोल रहा है आप गलत डिसीजन लो, आपको नहीं बोल रहा है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं, लेकिन ये बोलता है प्ले सेफ। जब ये बोलता है प्ले सेफ, तो हम 2 कदम पीछे चलते हैं।
जो हमारा तीसरा वॉइस है ना, एक्शन टेकर, वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए, बोलता है मैं चलूं कि ना चलूं, मैं आगे चलो। बढ़ूं, ये तो बोल रहा है प्ले सेफ। तो 3 कदम, लेकिन हमें क्या करना है, हमारे एनएलपी में बहुत सारी पावरफुल टेक्निक्स हैं जो हमें सिखाता है। ये क्रिटिक ही सबसे पावरफुल, सबसे हमारा बेनिफिशियल यार है, दोस्त है। क्या करना है, उस टेक्निक के थ्रू हम टेबल पे बैठते हैं, तीनों वॉइसेस से, हाँ इसीलिए बोलते हैं ना, खुद के साथ कभी बैठना चाहिए, खुद में ही पावर है, खुद में सब कुछ है, हम इधर उधर ढूंढते हैं, हमारे अंदर ही सब है। तो क्या है, हमें इस सबसे पहले इस क्रिटिकल वॉइस को लेना है, चल बोल क्या है, ये नहीं कि तुम तो बोलते हो, तुम मुझे डराते हो, नो, वी हैव टू एक्नॉलेज, वी हैव टू जस्ट क्वेश्चन आस्क। और जब आस्क करते हैं ना, ये इसका वो जो फेयर या गिल्ट होगा, उसका पावर, उसकी एनर्जी हम लेते हैं, उसका पावर खत्म हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है। और फिर इसको एक्नॉलेज करना है, यस यू आर राइट, मैं बारिश में जाके बीमार हो सकती हूँ, सही कहा आपने। हम्म। और फिर उसको अप्रिशिएट, थैंक यू फॉर मेकिंग मी अलर्ट, और उसको हम्म। अप्रिसिएशन देना है। और फिर क्या करना है, सोचना है मैं क्या करिए, इसने तो मुझे बोला बारिश में बीमार, भीगने से बीमार हो जाओगे, तो मैं क्या करूंगी, मैं अपना विजडम, जो मेरा इनर विजडम है, मैं सोचूंगी मैं रेनकोट लाऊंगी, रेनकोट पहन के निकल जाऊं, मैं अंदर से बोलती हूँ, मैं रेनकोट लाऊंगी ना, मैं निकलूंगी। और स्लिप, हाँ स्लिप बोला आपने, स्लिप भी हो सकता है, पैर तोड़ दोगी, वो करोगी, तो मैं, हाँ मैं शूज पहनूंगी। इसको हर सिनेरियो में बैठना है, लिखना है, कमर क्रिस्टलाइज करना है, ताकि ये ना रीप्रोग्राम हो जाए, ये जो वायरिंग हुई है अंदर, इसको हम रीवायर करेंगे। और उसको लिख के फिर यहाँ से इसको सोल्यूशन देंगे, ये खामोश होता है, तो ये एक ब्लेसिंग है, ये कोई भयानक सी चीज नहीं है। अब सवाल है, ये हमारे डिसीजन पे कैसे इम्पैक्ट डालता है। ये हमें नहीं बोलता है टू मेक रॉन्ग चॉइसेस, जैसे मैंने बोला, ये बोलता है प्ले सेफ। सो जब ये प्ले सेफ बोलता है, तो मैं क्या, जैसे मुझे ऐसा है, मैं बिजनेस करना चाहती हूँ, मैं बोलती हूँ, ये बोलता क्या बिजनेस, पिछली बार 2-3 बार तो इतना फ्लॉप हो गई, कहाँ, जो कि रियलिटी भी हो सकती है, या मैंने किसी को देखा है फ्लॉप होते हुए, या किसी ने मुझे कहा, ऐसे बिजनेस आसान नहीं है, कुछ भी, वॉट एवर द डाटा इज, वॉट एवर द सोर्सेज, इसके अंदर वो डाटा है, और मुझे बोल रहा है ऐसे प्ले सेफ, अभी तुम रेडी नहीं हो, ठीक है। तो जब ये बोलता है ना, मैं क्या करती हूँ, आई चूज कंफर्ट, पीपल चूज कंफर्ट ओवर ग्रोथ, क्योंकि उनको बिल्कुल। डायरेक्शन नहीं है, बिल्कुल। कुछ है, ये एक सेंटेंस ना इनका माइंड शिफ्ट कर देता है। एंड दे हम्म। चूज फेमिलियरिटी, हाँ फ्लॉप तो होते हैं, ओवर पॉसिबिलिटी, अगर वो एक्शन लेंगे तो पॉसिबिलिटी कैन बी, दे कैन फ्लरिश इन बिजनेस, वो बारिश में जाके अच्छे से एंजॉय करके कॉफी का कप पी के आ सकते हैं, राइट। हम्म। तो लेकिन उनका हाँ उस दिन तो गिर गई थी ना, फिर पता मैं इतने दिन फिर चल नहीं पाई थी, राइट। तो क्या करना है हमें, इसके साथ बैठना है, सुननी है इसकी बातें कामली, फिर नोट करना है, फिर इसका सोल्यूशन निकालना है अपने अंदर ही हमारे वो। तो हमारा, जैसे हमारा रिलेशनशिप में क्या होता है, हम क्या कहते हैं, ये क्रिटिक बोलता है, डोंट एक्सप्रेस योर सेल्फ, जस्ट बी काम, क्योंकि इससे लोगों को बुरा लगेगा, हम्म। राइट। और फिर क्या बोलते हैं, एडजस्ट तो करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ता है। whoever the person is, ये मर्द भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है, ये बिल्कुल। बच्चा भी हो सकता है, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आई हैव सीन द सिचुएशन, इट्स नॉट जस्ट वन सिनेरियो। सो क्या बिल्कुल। करते हैं, जब ये बोलता है तो यू स्टे साइलेंट, बट साइलेंस इज मोर डेंजरस, साइलेंस इज पॉइजनस, साइलेंस हम्म। बिकम्स रिजेंटमेंट। और फिर जब आप दबाते दबाते हो अंदर से साइलेंट रह गई, वो कभी गलत सिचुएशन पे ऐसे बाहर आता है ना, जहां से सिचुएशन पूरी हाथ से निकल जाती है। हम्म। इसलिए इसको जी, तो इसलिए ये डिसीजंस और रिलेशनशिप्स में ऐसे हम इसको यूटिलाइज करके बेहतरी ला सकते हैं हमारी लाइफ में। थैंक यू सो मच, होप आई एम एबल टू मेक यू क्लियर। अरे जबरदस्त, इट्स एन आई ओपनिंग की, इतनी क्लैरिटी शायद नहीं मिलती कि अगर हम, वही है ना कि हम बुक पढ़ेंगे वहां पे हमें जस्ट की दिया गया है, इतनी क्लैरिटी नहीं मिलती है कि जब तक हम बात नहीं करेंगे। और कितना थैंक यू। आपने पूरा डिफरेंशिएट किया कि हमें तीनों को साथ बिठा के बात करनी है, राइट। देन एक्शन लेना है। और हम वही बाहर जाके मजा भी कर सकते हैं, कॉफी भी पी सकते हैं, जैसे कि जिस दिन हम मिले थे फर्स्ट टाइम, उस दिन भी ओह बहुत ज्यादा वाह। ठंड थी।
उस दिन भी बहुत ज्यादा ठंड थी, बारिश हो रही थी, लेकिन वी बहुत। एंजॉयड अ लॉट, वी और इतने एंजॉयड अ लॉट। एक्सक्यूजेस थे, इतने एक्सक्यूजेस थे, क्या हाँ, बताऊं, इतने लेकिन वी डिड इट एक्सक्यूजेस थे, बिकॉज द इतना। एक्शन टेकर वाज स्ट्रांग। हाँ, क्योंकि इतना फॉग था उस दिन की बाहर निकलना मुश्किल था, एंड मैं अकेली थी, ड्राइवर नहीं था, लेकिन फिर भी अगर हमने एक्शन लिया तो ड्राइवर भी आ गया, सब कुछ आ गया, आप राइट। इतनी दूर से पहुंचे। जी तो जी जी। एक्शन लेना है, हमें बात करनी है और एक्शन लेना है। थैंक यू करेक्ट। सो मच हनीफा जी। एंड थैंक हमें यू। और ज्वाइन किया है लोगों ने, तारिक आलम जी, थैंक यू सो मच, शिराज जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच कि आपने हमें ज्वाइन किया है। और अगर आपके भी कोई क्वेश्चंस है, आज हम बात कर रहे हैं वन माइंड मैनी वॉइसेस के बारे में, और हमारे स्पेशल गेस्ट हैं एंड एस्टीम्ड एनएलपी कोच हनीफा जी, वेलनेस कोच, जो कि बहुत अच्छे से डील करती हैं इन साइकोलॉजिकल वॉइसेस को, नेगेटिव सेल्फ टॉक को, कि कैसे हमें इनको कॉन्शियसली चूज करना। जैसे कि अभी आपने इस क्वेश्चन को देखा कि कितने, कोई भी आपको ऐसे नहीं समझा सकता था जैसे अभी इन्होंने थैंक यू। समझाया। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू एनएलपी, रिलेटेड टू दिस माइंड सेटर, अगर आप भी हमेशा की बहुत सारा कुछ उथल पुथल अंदर चलती रहती है, तो आप अपना क्वेश्चन यहाँ चैट कमेंट सेक्शन में डालिए, हम आपका क्वेश्चन जरूर लेंगे। राइट। सो आगे चलते हैं कि मोस्ट पीपल ट्राई टू फाइट आर सुप्रेस नेगेटिव वॉइसेस, करते हैं, ऐसे ही होता है, बट यू आर सजेस्टिंग ए डिफरेंट अप्रोच। ये आज मेरे लिए भी कई चीजें आज नई थी जो मैंने सुनी। एंड इज it possible to observe these inner voices without fighting them? या why is ये जो अवेयरनेस है, why is awareness, this type of awareness more powerful than suppression? देन कि हम हमेशा उसको शट अप कॉल जो हम देते रहते हैं कि, तो क्या हमें करना चाहिए ये? यस। यस कमल। सो ये जो है, इसको जनरली वी डू दैट, कि जब हम्म। माइंड हमें कुछ बोलता है, हम बोलते हैं चल तुम कुछ ज्यादा फ्रैट, तुम तो हाँ। ऐसे ही बोलती हो, है ना, हाँ, ऐसे ऐसा चलता कुछ है, नहीं होता है, रहता हाँ है। वहम है तुम्हें, ऐसा बोलते हैं। हाँ। लेकिन लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें इसको, जैसे मैंने बोला पहले, एक्नॉलेज करना है, अप्रिसिएट करना है, लेकिन इसको ड्राइविंग सीट पे नहीं बैठने देना है, जो कि हम मोस्टली करते हैं। ड्राइविंग। ये हमें लगता है ये हमारे अंदर की वॉइस है, ये हम ही हैं, लेकिन ये हम नहीं होते हैं, वो क्रिटिक होता है जो हमें रोकता है। हमें इसको ड्राइविंग सीट पे नहीं बैठने देना है, ऑब्जर्व करना है, फाइट नहीं करना है, क्योंकि वॉट एवर वी रेजिस्ट इट परसिस्ट। रेजिस्टेंस से वो ज्यादा उसको हम एम्पावर करते हैं, उसको एनर्जी देते हैं। ये एक साइंटिफिक मतलब क्वांटम फिजिक्स का भी है, कि जब हम किसी पार्टिकल को, विच इज लाइक इलेक्ट्रॉन, इट इज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट्स ऑल मैटर ऑफ एनर्जी जो भी है, अगर हम उसको डबल स्लिट में, ये प्रूव हुआ, जब उसको ऑब्जर्व करते हैं ना, इट गेट्स फ्रोजन, फ्रीज हो जाए। इसी तरह से कोई थॉट भी, थॉट इज ऑल्सो एनर्जी, ओके। इसी तरह से ये इमोशंस भी एनर्जी है, सब एनर्जी है बेसिकली। जब हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, उसका मोर देन हाफ पावर जो है खत्म हो जाता है। इसलिए फाइट कभी नहीं करता है, फाइट करने से उसको और ज्यादा एनर्जी मिलती है। ठीक है। तो क्या करना है, जैसे मैंने कहा, ये हमारे एनिमीज नहीं है, ये हमारे यार हैं, ये हमारे दोस्त हैं। हमें इसको ऑब्जर्व करना है, विदाउट जजमेंट, विदाउट एनी कंप्लेन, विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट। इसको लेना है, समझना है, और फिर बैठना है, मैं क्या कर सकता हूँ, और अकॉर्डिंगली वो, फाइटिंग इज नॉट द सोल्यूशन, ऑब्जर्वेशन एंड एड्रेसिंग इज द सोल्यूशन। यस। जबरदस्त। जब तक हम एड्रेस नहीं करेंगे तब तक हमें पता कैसे चलेगा कि You क्या don't चीज को heal by एड्रेस करना fighting. You है? know, you heal when you become aware हम्म। about yourself, your thoughts, your processes, your agony. एंगर है तो किस लिए है, हर्ट हूं तो क्यों हूं, क्यों हर्ट हम्म। हूं। जब तक हम्म। उसको समझेंगे नहीं, तब तक हम हील नहीं हो सकते। बिल्कुल नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं जी। हो सकते। थैंक यू सो मच। वही ना, क्या कहते हैं कि माँ भी बच्चे को तब तक दूध नहीं पिलाती है जब तक वो रोएगा नहीं। तो वो समझ तो आए कि मांगेगा। तुम्हें चाहिए क्या, बोलो तो। अल्लाह ताला से राइट। भी हम सीधा बोले, हम अल्लाह ताला को भी कंफ्यूज ना करें, उनको बोले कि ये चीज चाहिए, ये राइट। गोल वेरी है, ट्रू। वेरी ट्रू। तो वेरी हमें ट्रू। मिल जाएगा। तो अपने क्वेश्चंस का आंसर भी हमें मिलेगा, हमें बस अवेयर होना है, हमें उसको जी लेना जी। है।
Thank you so much. Beautiful wisdom, Hanifa ji. Mm. And you are teaching that awareness and observation are more powerful than trying to control or eliminate these voices. या जो हमेशा जो हम शट अप कॉल हमें नहीं देनी है, हमें we have to cater these questions, we have to talk with them, Yes, and we have to solution अपने आप question. आ जाएगा. Correct. Solution आ तो जाएगा. अगर लास्ट फिर में मैं भी आपको जी जी, ये जो एक सीड होता है ना, सीड को पता है मुझे ट्री बनना है, पता हम्म, क्या उसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन सारी भरी पड़ी है, कब पता हम्म, निकलेगा, कब वो होगा, कब फल आएगा, सब, लेकिन उसको नर्चर करना है, हम्म, उसका केयर करना है, ये सारा ब्लूप्रिंट अंदर है, लेकिन हमें हम्म, डील करना है, हमें अवेयर होना है उसके बारे में, क्या करेंगे और कैसे चलेंगे. सीड इज जबरदस्त. जस्ट लाइक योर, इट्स जस्ट लाइक योर माइंड, आपके अंदर ट्रू. ही सब है, उसको जानना है. जी, बिल्कुल, बिल्कुल. और राइट. मुझे लगता है कि आप इस जो हमने इतनी सारी डिस्कशंस की, इसको सुन के हमारी जो ऑडियंस अभी हमें देख रही है, वो रेडी हैं कि सम कुछ एक्शन लें वो आज, कि दे करेक्ट. कैन स्टार्ट यूजिंग टुडे टू शिफ्ट व्हिच वॉइस दे हैव टू लिसन, और किसको हमें कैसे डील करना चाहिए. सो ऑडियंस, फॉर यू, व्हाट इज वन प्रैक्टिकल शिफ्ट आवर क्वेश्चन, कि जो आप आज से आप शुरू करोगे चूज करना, अपने हेल्दियर उस इनर वॉइस को लेना, और लिव मोर कॉन्शियसली, लिव मोर लाइवली. क्योंकि हम सब चल रहे हैं, जिंदा नहीं है हम, बस चल रहे हैं. सो थैंक And यू give सो in the मच comments हनीफा जी. which voice you are going to choose today. हाँ, हम ये कमेंट सेक्शन में आपके लिए छोड़े कि वो आप बताइए हमें कि कौन सी वॉइस को आज आप डील करना चाह रहे हैं. सो Right. हनीफा जी, ये जो एंड पे हमने बात की, इससे मुझे और एक पावरफुल फैज अहमद फैज साहब की एक याद आई है, तो मुझे लिबरेटिंग मुझे वर्ड से लगता है मुझे लगता है आप भी यहाँ. लिखती हैं. हाँ, मुझे लगता है नहीं, फैज़ अहमद फैज़ मैं सिर्फ़ पढ़ती हूँ, ओके लिखती ओके. कुछ ख़ास नहीं हूँ. तो उनका है कि मैं क्योंकि यहाँ वो बिल्कुल फिट हो रहे हैं वो वाले वर्ड्स. बोल की लब आज़ाद हैं तेरे, बोल की लब आज़ाद हैं तेरे, बोल ज़ुबान अब तक तेरी है, बोल की राइट. सच ज़िंदा है अब तक तुझ में, बोल जो कुछ कहना है कह ले, क्योंकि तभी वंडरफुल. आपको आंसर मिलेगा. और जो दूसरे ऑडियंस हमें देख रही है जो नहीं समझते उर्दू उर्दू, तो मैं उनके लिए भी बोल दूं, स्पीक फॉर योर लिप्स, लिप्स आर फ्री, स्पीक अप, स्पीक, योर टंग इज स्टिल योर ओन, ब्यूटिफुल. स्पीक, स्पीक फॉर ट्रुथ, जो ये सच्चाई है, ट्रुथ इज स्टिल अलाइव, स्पीक, से वट एवर यू वॉन्ट टू से, टॉक टू योर सेल्फ. यस. थैंक यू सो मच कि थैंक आज यू. की कन्वर्सेशन, मुझे अल्लाह लगता है मैं हाफ़िज़. खुद इसको बार-बार जाके देखूँगी. थैंक यू सो मच हनीफा जी. दिस हैज़ थैंक बीन यू. यू आर एब्सोल्यूट. डूइंग वंडरफुल जॉब. ऑल द वेरी बेस्ट. Thank you. This has been absolutely mind opening, mind blowing. You have shown our audiences, our beautiful souls, that they are not their thoughts. They are not their critical voices. They have the power to observe, to choose, and consciously decide यस. which voice leads their life. यस. And my beautiful soul, I hope you can see that awareness is your superpower. And Hanifa ji has given you the understanding to recognize psychological voices, the wisdom to know they are not your truth, and so many practical tools to consciously choose healthier inner voices starting from today. जो कि हमने आपको अभी क्वेश्चन भी एक दिया है कि आप अभी से स्टार्ट करिए अपनी हेल्दियर वॉइस, इनर वॉइसेस को चूज करना. So before we wrap up today, Hanifa ji, do you have any special guidance or offer for our beautiful souls, for our audiences who are ready to master their inner voice and rise with confidence, rise with clarity, rise with calmness? कुछ खास हमारी ऑडियंस के लिए. यस. कमर एक्चुअली बहुत सारा है. मेरा बेसिकली जो है ना, ये जो हमने क्रिटिक की बात की, क्रिटिकल वॉइस की बात की, ये क्यों हड़बड़ाया हुआ है, ये क्यों इधर उधर हमें डायरेक्शन नहीं दे पाता है, इट्स बिकॉज वी आर कैरिंग सर्टन थिंग्स इन द फॉर्म ऑफ ट्रॉमा, इन द फॉर्म ऑफ हर्ट, गिल्ट, जो भी है. मेरा मेन होता है उनको उस ट्रॉमा से हील करना, उनको हाँ. रेस्टोर करना अपनी एनर्जेटिक, अपनी पोटेंशियल के साथ, क्योंकि जब हम ट्रॉमा में होते हैं, it occupies space in our subconscious mind and it takes all the attention and energies that we have.
सो जब तक इसको, जैसे हम रिमूव करते हैं वायरस फ्रॉम और लैपटॉप और फोन, इसी तरह से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में दीज थिंग्स एक्ट मोर देन वायरसेस. सो जब तक हम वायरसेस को रिमूव नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते. तो मेरे पास हैं बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं. किसी को सेल्फ एस्टीम पे ट्रॉमा हील करना है, बहुत सारे हैं. They can just go to my website or DM me directly, and there are so many. And dealing with these three voices, there are scientific tools how we can empower the action taker and disempower the critical voice by properly taking it into our वो अपने साथ उसको याराना दोस्ती बना के उसको रेस्पेक्ट दे के कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं. सारे प्रोग्राम्स हैं इसमें. जो आगे बढ़ना चाहता है ही और शी कैन DM me and I will be there to help them. Thank you such much. Thank you so much. Such an amazing thinking. You have so many programs that I already know. And audience, you must have to connect with Hanifa ji. Thank you so much, Hanifa ji, for revealing this silent battle we all face and showing us that we have the power to choose which voice leads. And Yes. your work is helping people break limiting beliefs and master their inner world is truly, truly transformational. For everyone watching us, if Hanifa ji's work resonated with you and you are ready to master your inner voice, do reach out to her. And if this session added value to your life, please share it with someone who is battling their own critical voices. क्योंकि आपने देखा होगा आपके नियर्स एंड डियर्स में होंगे लोग कि Most of us. जो जो इसमें जूझ रहे हैं, जो आपको दिख रहे हैं, ऑलवेज डिस्टर्ब्ड, ऑलवेज की उनको समझ नहीं आ रही है विच वे टू गो, विच वे टू चूज. एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो आवर पेज for more such life changing conversations. And to my amazing beautiful souls and audience, remember the closing question जो हमने अभी आपको दिया है. Now that you know these voices exist, which voice will you consciously choose to lead your life from this moment onwards? क्योंकि लेने का टाइम अभी है. Drop your answer in the comment section. We would love to hear which voice you are choosing today. And thank you so much for joining us live. Thank you so much, Saim, Shamolima ji, Tariq ji, and Shiraz ji. Thank you so much. And जो इस live को बाद में देखेंगे, already grateful to you people कि जो हमारा live बाद में देखेंगे. Until next time, keep choosing wisely, keep listening to your true wisdom, and keep being the conscious souls you are. And with lots and lots of love and inner peace, Zozo from my side and from Hanifa ji. Thank you, Hanifa ji. Zuzu. Thank you. So grateful for inviting me to the Anisa show. All the very best. Keep shining, My honor. rocking. Thank you. Okay. Amin. Allah Hafiz. Allah Hafiz.